اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بارسلونا کے قریبی علاقے کورنیا دے یوبریگت میں المونیم کے کام کی ایک فیکٹری پورسیانا پورتاس کورنیا کام اور کوالٹی کے اعتبار سے بااعتماد ادارہ، جہاں پر تمام کام جدید مشینری پر کیا جاتا ہے۔ آپ کے گھروں اور کمرشلز کے لیے ایلومینیم کے دروازے، کھڑکیاں اور دیگر اشیاء بنائی جاتی ہیں۔ ہمارا پتہ یہ ہے۔ آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق پاکستان کی پاپولیشن سے ہے۔ پاپولیشن کونسل کے مطابق پاکستان دنیا کی 5ویں بڑی آبادی والا ملک بن گیا ہے۔ ملک میں ہر سال آبادی میں 2.4% اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان میں ہر سال 11,000 مائیں دوران زچگی یعنی پریگننسی کے دوران انتقال کر جاتی ہیں۔ پاکستان میں ہر ماہ ایوریج 4 بچے پیدا کر رہی ہے۔ پاکستان کے 40% بچے غذائی قلت کا شکار اور 29% کا وزن کم ہے۔ پاکستان میں 5 سال سے کم عمر 18% بچے بڑھ نہیں رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کو 2040 تک 10 کروڑ سے زائد نوکریوں، 2 کروڑ گھروں کی ضرورت ہوگی۔ آبادی میں اضافے سے پاکستان کو پانی کی شدید قلت کا سامنا ہو رہا ہے۔ 2040 تک پاکستان کو 85,000 مزید پرائمری سکولز کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں ہر 3 میں سے 1 بچہ سکول بھی نہیں جا رہا ہے۔ پاکستان کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے، جبکہ بھارت اور بنگلہ دیش نے بڑھتی ہوئی آبادی پر قابو پا لیا ہے۔ لاہور ایئرپورٹ کو 2 ماہ کے لیے مخصوص اوقات میں بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور ڈی جی سول ایوییشن نے ایئرپورٹ بندش کی منظوری دے دی ہے۔ لاہور ایئرپورٹ رن وے صبح 5 بجے سے صبح 8 بجے تک بند رکھا جائے گا اور فیصلے کا اطلاق 15 جولائی سے 15 ستمبر 2023 تک ہوگا۔ 2019 میں یورپ میں جرنلسٹ آف ایئر کا خطاب جیتنے والے آسٹریلیا کے مشہور ترین میڈیا شخصیت ارمین وولف نے ٹی وی پر نیوز بلیٹن کے آخر میں اپنے سر پر پانی ڈال کر یہ احساس دلا دیا کہ یورپ میں گرمی کی شدت کتنی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ ٹی وی چینل ORF سے منسلک صحافی اپنے سر پر جب پانی ڈالا تو اس وقت کیپٹل ویانا کا ٹمپریچر 37.2 سینٹی گریڈ تھا، جو شاید تاریخ کا اس شہر میں سب سے زیادہ درجہ حرارت ہے۔ فرانس کے صدارتی امیدوار 61 سالہ نکولس ڈوپونٹ ایکنان کا کہنا ہے کہ فرانس میں مہاجرین کی بڑی تعداد جو فرینچ سوسائٹی میں انٹیگریٹ ہونے میں ناکام رہی ہے، ملک میں ہونے والے فسادات کی ذمہ دار ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ ملک کی پرانی سرحدوں کی بحالی اور فرانس کا شنگن زون کو چھوڑ دینا ہے۔ فرانس اپنے شہریوں کو پھٹے پرانے کپڑے اور جوتے کو پھینک کر نئے خریدنے کی بجائے انہیں مرمت کرانے پر آمادہ کرنے کے لیے ایک بونس اسکیم شروع کر رہا ہے۔ اس اسکیم کا مقصد مرمت کے شعبے کو سپورٹ کرنا اور نئی ملازمتیں پیدا کرنا ہے۔ رواں سال اکتوبر سے یہ بونس ڈسکاؤنٹ کی صورت میں میسر ہوگا، جس کی مالیت 6 یورو سے 25 یورو تک ہوگی۔ حکومت 5 سال کے دوران بونس کی فنڈنگ کے لیے 154 ملین یورو مختص کرے گی۔ یاد رہے کہ فرانس میں ہر سال 7 لاکھ ٹن کپڑا کوڑے میں پھینک دیا جاتا ہے۔ پرتگال نے سرمایہ کاری کی بنیاد پر نئے گولڈن ویزا اسکیم کے خاتمے کی منظوری دے دی ہے۔ یہ منظوری پرتگال پارلیمنٹ نے دی ہے، جس کی حمایت پارٹیدو دے سوشلسٹا، بلاک دے اسکیردا اور ایک لیفٹ ونگ پارٹی اور پرتگیز کمیونسٹ پارٹی نے کی ہے۔ یونیسیف کے مطابق رواں سال کے پہلے 6 ماہ میں کم از کم 289 بچے یورپ پہنچنے کی کوشش میں سمندر میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ ان بچوں نے تنازعات اور آب و ہوا میں تبدیلی کی وجہ سے بحیرہ روم میں خطرناک سفر کیا۔ ایک اندازے کے مطابق 2023 کے پہلے 6 مہینوں میں 11,600 بچے اس سفر پر نکلے، جو 2022 کے اس عرصے کے مقابلے میں تقریباً 2 گنا ہے۔ پاکستان نے برطانوی خاتون پولیس افسر کے قتل میں ملوث اپنے 74 سالہ شہری کو برطانیہ کے حوالے کر دیا۔ ترجمان وزارت داخلہ نے اس حوالے سے تصدیق کر دی ہے۔ پیران دتا نامی ملزم پر 2005 میں بریڈ فورڈ میں پولیس افسر کو قتل کرنے کا الزام ہے۔ اسپین کے جزیرے پالما مایورکا میں پولیس نے 6 جرمن نوجوانوں کو ایک جرمن لڑکی سے گینگ ریپ کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ متاثرہ لڑکی کے مطابق ان کی ملاقات ساحل پر ایک لڑکے سے ہوئی اور اس نے ہوٹل میں مدعو کیا۔
जब वो कमरे में पहुंची तो देखा कि वहाँ मज़ीद नौजवान मौजूद हैं जिन्होंने उसे घेर लिया और ज़्यादती का निशाना बना डाला। लड़की ने बताया कि वो होटल से भागने में कामयाब हो गई और रिसेप्शनेट को इत्तला दी, जिसने पुलिस को वाक़े से मुत्तला किया। पुलिस ने 20 साल की उम्र के लगभग 6 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है। स्पेन के शहर सारागोसा के कस्बा केस्तास में एक 8 साला पाकिस्तानी लड़का अब्दुल वहाब स्विमिंग पूल में नहाते हुए डूबकर जाँ बहक हो गया। मरहूम का ताल्लुक ज़िला गुजरात से है। हादसे के बाद लाइफ गार्ड ने मुतासिला लड़के को फौरी तौर पर पानी से निकालकर एमरजेंसी सर्विस को कॉल किया। एमरजेंसी सर्विस ने पाकिस्तानी लड़के की जान बचाने की कोशिश की मगर बेसूद रही और नौजवान खाल के हकीकी से जा मिला। बार्सिलोना के होटल्स में 14 डकैतियों के 2 मुबैना मुलजमों को अलीकांते से गिरफ्तार कर लिया गया है। ये डकैतियाँ जून 2022 और मई 2023 के दरमियान की गई थी। गिरफ्तार जराइम पेशा गिरोह जर्मनी, पुर्तगाल, ऑस्ट्रिया और जमहूरिया चेक के होटल्स में भी ऐसी ही डकैतियाँ करता रहा। गिरफ्तार किए गए मुलजमान पर अलीकांते के होटल्स में 2 डकैतियों का भी इल्ज़ाम है। गिरफ्तार अफराद होटल क्लाइंट बनकर दाखिल होते और कमरों में घुसकर सेफ से जेवरात, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, पासपोर्ट, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स और दीगर अशिया चुरा लेते थे। मुलजमान ने मुख्तलिफ वारदातों में 50,000 से ज़ायद यूरो और भारी मालियत के जेवरात चुराए हैं। गिरफ्तार दोनों मुलजमान को अदालत में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। बार्सिलोना में पहली बार बूफे 22 से ज़ायद आइटम के साथ पाकिस्तानी और इंडियन खानों का भरपूर स्वाद हबीब विलेज रेस्टोरेंट। फैमिलीज़ के लिए पुरसकून माहौल, कुशादा हाल, शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए आइडियल मुकाम। अल्कोहल से पाक और हलाल पकवान हमारी पहचान। शीशा और पूल टेबल के शौकीन के लिए आइडियल जगह। खूबसूरत तरासा बार्सिलोना के साहिल के करीब सेंट्रो कमर्शियल ला विया में वाक़। हमारा पता ये है। नाम भी असली, जायका भी असली, लज्जत और चटखानों की दुनिया। पुराना कुतबा रेस्टोरेंट एंड मैरिज हॉल, देसी खानों का मरकज, रोस्ट मुर्गी, चाप ग्रिल, रोस्ट रान, सालम बकरा रोस्ट, वसीओ और इजहाल, 400 अफराद के बैठने की जगह, सालगिरह, शादी और दीगर तकरीबात के लिए, फैमिलीज के लिए अलहदा इंतजाम। रेस्टोरेंट की दुनिया में खिदमत और नफासत का नाम चौधरी सिकंदर हयात गोंदल। हमारा पता काये कुर्तबा नंबर 100, बादालोना, स्पेन। हमारा फोन नंबर 9313923341। 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़्द दरासाना हॉस्पिटल, बार्सिलोना। मौलक हीट वेव ने स्पेन समेत यूरोप के अक्सर ममालिक को अपनी लपेट में ले रखा है। कार्बन आलूदगी के बायस शदीद गर्मी की लहर जनूबी यूरोप को अपनी लपेट में ले रही है, जिससे उम्र से रसीदा अफराद और सेहत के बुनियादी मसाइल से 2-4 अफराद को शदीद ख़तरात लाहक हैं। गर्मी की शदीद लहर ने ठंडी रातों के लिए मशहूर यूरोप की रातें भी जहन्नम बना दी हैं। स्पेन में पहली बार दिन के गर्म औकात में तामीराती और फूड डिलीवरी के शोबे में काम करने वाले अफराद के काम पर पाबंदी आयद कर दी है। कतलान इलाकों लरीदा और गानिया और बोइल्दा में टेम्परेचर 41 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़ायद रहा। स्पेन के अदारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स के जारी करदा डाटा के मुताबिक कतालुनिया में जून में इन्फ्लेशन यानी महंगाई की शरह 1.3% पॉइंट्स कम होकर 1.9% हो गई है। ये लगातार दूसरे महीने में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के डाटा में कमी आई है। अगरचे एशियाई खुर्दनोश की कीमतें एतदाल में आ रही हैं, लेकिन वो अब भी पिछले साल के मुकाबले में 10% ज़्यादा महंगी हैं। दिसंबर 2015 में स्पेन के साबिक वज़ीर आज़म मारियानो राखोई को इंतखाबी मुहिम के दौरान मुक्का रसीद करने वाले नौजवान ने गालिसिया के टाउन पोंते बेर्दे में एक लाबुज दे गालिसिया के सहाफ़ी को चाकू मार दिया, जिससे सहाफ़ी मामूली ज़ख्मी हुआ और अस्पताल में ज़ेर इलाज है। मुलज़म के हमलों की हिस्ट्री का काफ़ी तवील रिकॉर्ड है। स्पेन की नशे पुलिस ने मुर्सिया और अल्बासेते में एक क्रिमिनल नेटवर्क का खात्मा कर दिया जो बांग्लादेशी वर्कर्स का इस्तेहसाल करता था। ऑपरेशन के नतीजे में 14 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनकी उम्र 20 से 47 साल के दरमियान है। मुल्ज़मान के खिलाफ फ्रॉड, लेबर लॉज की खिलाफ वर्जी, फेक डॉक्यूमेंट्स और बिजली चोरी के जराइम में मुलव्विस होने के इल्ज़ामात हैं। वर्कर से डोनर कबाब की दुकानों पर काम लिया जाता था। मुल्ज़मान वर्कर से नामुनासिब हालात में रखा जाता था और तनख्वाह भी इंतहाई कम दी जाती थी और अक्सर वर्कर्स का स्टेटस भी गैर कानूनी था। बिजली चोरी भी गैर कानूनी कनेक्शन मौजूद थे और इस मद में हुकूमत को 8500 यूरो का टीका लगाया गया था।
स्पेन के साबिक बादशाह खुआन कार्लोस ने अपने बेटे और मौजूदा किंग फिलिपे की मिन्नतें और तरले करते हुए मुतालबा किया है कि मलका लतीसिया की जानिब से आयद पाबंदी ख़त्म की जाए और कहा कि उनको उनकी शहज़ादियों लियोनार और सूफिया से मिलने दिया जाए। स्पेन के साबिक बादशाह खुआन कार्लोस 4 साल बाद शहज़ादियों को ज़ाती तौर पर देखना और मिलना चाहते हैं। स्पेन के बादशाह खुआन कार्लोस करप्शन के इल्ज़ामात के बाद बादशाह छोड़कर खुद साख्ता जलावतनी में ज़िंदगी दुबई में गुजार रहे हैं। साबिक बादशाह खुआन कार्लोस अव्वल 23 जुलाई को होने वाले आम इंतखाबात के फ़ौरन बाद जुलाई के आखिरी हफ्ते में स्पेन आना चाहते हैं। नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का ख़बरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश ये है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें और अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ ज़िंदा रखे और हमारा ख़ात्मा ईमान के ऊपर करे और रोज़े महशर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत और ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िरी होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।